اس وقت پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور یہاں لندن کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ پیشے خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بھی۔ 19 اگست کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی باہری ناکہ بندی برقرار ہے اور آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ ایران پر دباؤ ڈال کر ایسی رعایتیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو کسی معاہدے کا حصہ نہیں تھی۔ ادھر ایران نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے میزائل حملے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ ابوظہبی نے تہران کے ساتھ تمام تجارتی اور مالیاتی لین دین اگلے نوٹس تک معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ We handle them very easily, just like we do others. We control it with a blockade, and I like the idea of declaring it a territory. When might you do that? We have total control over the Strait. و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر عمان نے ایران سے متعلق امریکی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی تو واشنگٹن عمان کو بمباری کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ جانیں گے کہ کیا امریکہ واقعی عمان پر بمباری کر سکتا ہے؟ This is an absolutely ludicrous suggestion by President. صدر ٹرمپ کی یہ تجویز سراسر مذاق خیز ہے۔ عمان 1950 کی دہائی سے مغرب کا ایک نہایت مضبوط اتحادی رہا ہے، ابتدا میں خاص طور پر برطانیہ کے ساتھ۔ یہ فوجی مشقوں اور طرح طرح کی کارروائیوں کے لیے ایک اہم مرکز رہا ہے۔ روس میں جنگ مخالف جماعت کے حامی گرفتار، یابلوکو جماعت کے نائب سربراہ کو یوکرین جنگ پر تنقید کرنے کے الزام میں 11 سال اور 1 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے اس کی اپیل مسترد کر دی۔ پارٹی سربراہ نکولائی ریباکوف کا کہنا تھا کہ یابلوکا کو اس لیے انتخابات سے باہر کیا گیا کیونکہ ہم امن اور آزادی پسند ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی شفا اسپتال منتقلی کا حکم، وفاقی وزیر قانون کا سپریم کورٹ سے ابہام دور کرنے کے لیے رجوع کرنے کا اعلان۔ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت، تو اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے تاکہ کسی ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے، البتہ کورٹ کے احکامات کے مطابق اور جیسے کورٹ مناسب سمجھے۔ جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ان کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ شفا انٹرنیشنل سے ہیں یا کسی اور بڑے ادارے سے ہیں۔ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کی اسکول ٹھیک کرو مہم کے دوران کارکن کے والد کا قتل۔ سی جی پی کا کہنا ہے کہ حملے کے باوجود اسکول ٹھیک کرو مہم جاری رہے گی۔ میں ان سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک چانس ہے ہم لوگوں کے پاس اب کچھ نیا کرنے کا، کچھ اچھا کرنے کا، تو کیوں نہ ہم جتنے بھی گاؤں میں سرکاری اسکول ہیں ان اسکولوں کو ٹھیک کریں، ان اسکولوں کو بہتر بنائیں تاکہ جو کسان اور مزدور کے بچے گاؤں کے اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں ان کو بھی لگے کہ وہ بھی اس دیش کا بھوشیہ ہے۔ پاکستانی ٹک ٹاکر شہزاد بھٹی پر بھارت میں دہشت گردی کے الزامات، جانیے ٹک ٹاکر شہزاد بھٹی کون ہیں؟ چلیں گے بھارت کی ریاست گجرات کے اس گاؤں میں جہاں آج بھی پاکستان کے بانی محمد علی جناح کا آبائی گھر موجود ہے۔ پانیلی موٹی گاؤں کا یہ گھر بانی پاکستان محمد علی جناح کے دادا پونجا بھائی ٹھکر کا تھا۔ جناح کے والد جینا بھائی پونجا کی پیدائش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی۔ جانیں گے کہ کیا مصنوعی ذہانت پر زیادہ انحصار وقت کے ساتھ ہماری تنقیدی سوچ، یادداشت، تخلیقی صلاحیت اور مسائل حل کرنے کی مہارت کو کمزور کر سکتا ہے؟ مصنوعی ذہانت لکھ سکتی ہے، سوالوں کے جواب دے سکتی ہے اور پیچیدہ مسائل حل کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جب مشینیں زیادہ سے زیادہ سوچنے کا کام کر رہی ہیں تو انسان یہ کام کرنا کم کر دیں گے؟ ویلکم ٹو پاکستان۔ اسلام آباد میں گوگل کا پہلا دفتر قائم۔ گوگل کا مصنوعی ذہانت کی سروس جیمنائی کی 1 سالہ مفت سبسکرپشن دینے کا اعلان۔ So first, later this week, we're going to announce that we will make Google Gemini subscriptions free for 1 year for all students.
کیا انگلیاں چٹکانے سے آپ کو آرتھرائٹس ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ڈونلڈ انگر نے بھی بچپن میں اپنے بڑوں سے کئی بار یہ سنا تو اسے غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 50 سال تک روزانہ کم از کم 2 بار صرف اپنے بائیں ہاتھ کے جوڑ چٹکائے، یعنی تقریباً 36,500 مرتبہ۔ 1998 میں 72 برس کی عمر میں جب انہوں نے دونوں ہاتھوں کا ایکس رے کروایا تو معلوم ہوا کہ بائیں ہاتھ میں آرتھرائٹس کی کسی بھی قسم کی کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی کسی بات چیت کا وقت طے کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی پوری طرح نافذ ہے اور آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے، جہاں ان کے بقول معمول کے مطابق سرگرمیاں جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنائے میں موجود تمام بارودی سرنگیں یا تو ہٹا دی گئی ہیں یا انہیں ناکارہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ We'd handle them very easily, just like we do others. We control it with a blockade, and I like the idea of declaring it a territory. When might you do that? We have total control over the Strait. دوسری جانب ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکی موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن یہ سمجھتا ہے کہ ایران پر مزید دباؤ ڈال کر اسے ایسی رعایتوں پر آمادہ کیا جا سکتا ہے جو کبھی کسی ممکنہ معاہدے کا حصہ نہیں رہیں۔ اپنے بیان میں کالیباف نے امریکی حکام اسکاٹ بیسنٹ اور پیٹ ہیگسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں افراد اس معاملے سے نمٹنے کے لیے موضوع نہیں ہیں اور امریکی انتظامیہ کو پہلے اپنے پیدا کردہ مسائل حل کرنے چاہیے۔ کالیباف نے عراق کے اپنے دورے کے حوالے سے بھی کہا کہ ایرانی اور عراقی عوام کے درمیان تعلقات تاریخی اور ناقابل تقسیم ہے۔ ان کے مطابق دورے کے دوران دونوں ملکوں کے امن، سلامتی اور عوام کی خوشحالی کے لیے عملی اقدامات پر توجہ دی جائے گی۔ و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایرانی میزائل حملے کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے الزامات بے بنیاد ہیں اور اس طرح کا طرز عمل اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ان کے مطابق ایسے الزامات خطے کے ممالک کے درمیان اعتماد بڑھانے اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اس سے قبل دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی جانب سے 2 بیلسٹک میزائل امارات کی سمت داغے گئے، تاہم اس کے مطابق دونوں میں سے کوئی میزائل اماراتی سرزمین پر نہیں گرا۔ اس کے چند گھنٹے بعد متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ تمام تجارتی اور مالیاتی لین دین اگلے نوٹس تک معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور امن و سلامتی کو درپیش خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے بعد خلیج میں کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات اس دوران ایرانی حملوں کے حوالے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل رہا ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر سائن کے بعد ایران نے فوجی کارروائیوں کے دوران متحدہ عرب امارات کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ تازہ میزائل حملے کے الزام اور اس کے بعد تجارتی اور مالیاتی روابط معطل کرنے کے فیصلے نے خطے میں پہلے سے کشیدہ صورتحال میں مزید پیچیدگی پیدا کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر عمان نے ایران سے متعلق امریکی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی تو واشنگٹن عمان کو بمباری کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی عمان کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب عمان خطے میں امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں اور آبنائے ہرمز سے متعلق مذاکرات میں اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ایسے میں صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک سخت انتباہ ہے یا اسے فوری فوجی کارروائی کا حتمی فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ بتا رہے ہیں فرینک گارڈنر۔ This is an absolutely ludicrous
suggestion by President सदर ट्रंप की ये तजवीज़ सरासर मज़ाक़ खेज़ है। अमान 1950 की दहाई से मगरिब का एक नहायत मजबूत इत्तेहादी रहा है। इब्तदा में खासतौर पर बरतानिया के साथ ये फौजी मशकों और तरह तरह की कार्रवाइयों के लिए एक अहम मरकज़ रहा है। मिसाल के तौर पर 2001 में अमरीका और बरतानिया की क़यादत में अफगानिस्तान पर हमले का आगाज़ भी यहीं से हुआ था। चुनांचे ये ख्याल कि अमरीका अचानक अपने इस साबित कदम इत्तेहादी पर बमबारी कर देगा, मेरे ख्याल में इसे ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि ट्रंप जो बहुत सी बातें कहते हैं वो महज असर डालने के लिए कहते हैं, इस उम्मीद पर कि लोग उनकी मर्जी के मुताबिक अपना रवैया बदल लेंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ट्रंप इस वक्त हाथ पांव मार रहे हैं, उस तनाज़ा से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं जो उन्होंने खुद नेतन्याहू के साथ मिलकर शुरू किया था। उन्हें उम्मीद थी कि ईरानी क़यादत का खात्मा करके, आयतुल्लाह अली खामेनी को कत्ल करके और इनकलाबी गार्ड्स के मुतअद्दिद अड्डों पर बमबारी करके ईरान हथियार डाल देगा। मास्को में पुलिस ने यूक्रेन जंग के खात्मे की हिमायत करने वाली सियासी जमात याबलूकों के दर्जनों हामियों को हिरासत में ले लिया है। रूसी सुप्रीम कोर्ट ने याबलूकों को सितंबर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने का फैसला भी बरकरार रखा है। दूसरी जानिब जमात के नायब सरबरा लीव शोलन्सबर्ग को यूक्रेन जंग पर तनकीद करने के इल्ज़ाम में 11 साल और 1 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये इक़दामात रूस में जंग मुखालिफ आवाज़ों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन की ताज़ा मिसाल करार दिए जा रहे हैं। स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट, उमर आफरीदी की ज़बानी। मॉस्को में सिक्योरिटी सख्त थी, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दर्जनों अफराद को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया गया। बहुत से नौजवान थे। ये लोग एक ऐसी सियासी जमात से यकजहती दिखाने आए थे जो रूस में खिलाफ मामूल खुलेआम अमन का मुतालबा करती है। अदालत के अंदर याबलूका के पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी के खिलाफ अपील की समाअत। ये वाहिद जंग मुखालिफ जमात थी जिसे इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन एक हफ्ता कबल ही कॉपीराइट की खिलाफ वर्जियों पर इसका नाम बैलेट पेपर से खारिज कर दिया गया। अदालत ने उसकी अपील मुस्तरद कर दी। पार्टी सरबरा निकोलाई रेबाकोफ का कहना था कि याबलूका को इसलिए इंतखाबात से बाहर किया गया क्योंकि हम अमन और आज़ादी पसंद हैं। जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि चंद दिन पहले तक हुकाम बज़ाहिर इतने पुरएतमाद थे कि उन्होंने एक जंग मुखालिफ जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी थी और यूं याबलूका को रजिस्ट्रेशन मिल गई, लेकिन सिर्फ चंद दिन बाद ही ये फैसला मनसूख कर दिया गया। क्यों हुआ क्या अहले इक़्तिदार को यह एहसास हो गया कि रूस में जंग मुखालिफ जज्बात उनके अंदाजे से कहीं ज़्यादा शदीद हैं? हालिया सर्वे जाहिर करते हैं कि तकरीबन 2/3 रूसी यूक्रेन से मुताल्लिक अमन मुज़ाकरात के हामी हैं, न कि जंग जारी रखने के। नौजवान रूसियों में ये शरह ज़्यादा है। यही बात गुज़श्ता हफ्ते अदालत के बाहर इन मनाजिर की वजाहत करती है जब याबलूका को इंतखाबी फहरिस्त से खारिज कर दिया गया था। सियासती प्रोपेगेंडा के बावजूद कि हर शख्स जंग हामी है और हुकूमत के साथ खड़ा है, हकीकत यह है कि जंग की खासी मुखालफत पाई जाती है और लोग बिलखुसूस नौजवान आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जंग मुखालिफ नहीं थे बल्कि सिर्फ याबलूका को वोट देना चाहते थे। अब यही नौजवान आगे चलकर मुस्तकबिल में अपोजिशन रहनुमा बनेंगे। दनियल याबलूका की हिमायत में यहाँ आए थे। वो कहते हैं मेरी पैदाइश और परवरिश पुतिन के रूस में हुई है। पुतिन ही वो लीडर हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर मुझे तशवीश है। और अब याबलूका के लिए एक और धचका। पार्टी के एक सीनियर रुकन लियो श्लोसबर्ग को यूक्रेन जंग की मजम्मत करने पर 11 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। उन पर रूसी फ़ौज को बदनाम करने और उसके बारे में झूठी खबरें फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने जंग को एक अलमिया करार दिया था जिसके खात्मे के फ़िलहाल कोई आसार नहीं हैं। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो हुक्मनामा जारी किया है उसके कुछ नुकात जो जेल हुकाम और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से मुतल्लिक हैं कि उनका 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से तिब्बी मुआयना करवाया जाए, इस पर मुशावरत हुई है और कानून का जायज़ा लेने के बाद हुकाम का ये ख्याल है कि ये हुक्म उन कानूनी हदूद के अंदर नहीं है जिनके तहत किसी भी सज़ा याफ्ता शख्स को जेल में
सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 2 रोज़ के अंदर शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अहले खाना ये यकीनी बनाएंगे कि शिफा अस्पताल के अहाते में कोई अवामी इज्तिमा नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी कि अदालत उज़्मा के इस फैसले पर मनोअन अमल किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों पर जोर दिया कि वो शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द जमा होने से गुरेज करें। गुज़िश्ता रात जारी करदा एक वीडियो बयान में अज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि इस हवाले से हुकाम की तजवीज़ थी कि नज़रसानी की दरख्वास्त के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और इस हुक्म में मुनासिब तरमीम की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी सरकारी अस्पताल में उनका मुआयना कराया जाए। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि तिब्बी माहिरीन को इसमें शामिल किया जा सकता है, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल से हों या किसी और बड़े इदारे से हों, लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर इस तरह के तिब्बी मुआयने के लिए कैदियों को निजी अस्पतालों में ले जाया जाता रहा तो पूरे पाकिस्तान की जेलों की आबादी में हज़ारों कैदी हैं जिन्हें मुख्तलिफ पेचीदगियाँ और बीमारियाँ भी लाहक हैं। कानून यह कहता है कि पहले एक मेडिकल बोर्ड होगा जो ये फैसला करेगा कि इलाज जेल के अंदर होना है या जेल से बाहर। अगर जेल से बाहर ले जाना हो तो हर सूरत में ये सहूलियात सरकारी अस्पतालों में ही फराहम की जाती हैं, जब तक ये सबूत या मवाद सामने ना आए कि सरकारी अस्पताल इस किस्म का इलाज फराहम करने से कासिर हैं या ऐसा नहीं कर सकते। इस वक्त तक इस तरह का इंतज़ाम मामूल के मुताबिक नहीं किया जाता। वफाकी वज़ीर कानून का ये भी कहना था कि इसकी वजह से कई दीगर पेचीदगियाँ भी पैदा होंगी। फिर ये सवाल भी है कि आया ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल आबादी के लिए होगा या इसे बतौर नज़ीर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कुछ दीगर कानूनी नुकात भी हैं जिन पर कानूनी टीम ने मुकम्मल मुशावरत की है, लिहाजा इस इबाहम को दूर करने और मुनासिब तरमीम की दरख्वास्त के लिए ताकि ये हुक्म आइन और कानून के दुरुस्त दायरा कार यानी पैरामीटर्स के मुताबिक हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा रहा है। 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत, तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नज़रसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए, अलबत्ता कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और जैसे कोर्ट मुनासिब समझे। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल से हैं या किसी और बड़े इदारे से हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हज़ारों कैदी जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयस्सर होती हैं। और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। इसकी वजह से अदरवाइज भी कई कॉम्प्लिकेशंस है जो पैदा होंगी। फिर ये आया ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा या ये बतौर नज़ीर इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ और कानूनी नकात भी हैं जिन पे जो लीगल टीम थी उन्होंने सारी मुशावरत की है। तो इस इबहाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा रहा है। याद रहे कि अपने तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को 2 रोज़ के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। ताहम इसके साथ अदालत ने मुतनब्बे किया है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट्स या सेहत पर सियासत की गई तो ये सहूलत वापस ली जा सकती है। अदालत ने अपने हुक्म में क्या कहा है, जानते हैं शहजाद मलिक से। सुप्रीम कोर्ट ने रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील देने का हुक्म दिया है और इस मेडिकल बोर्ड में इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल के अलावा उनकी बहन उज़्मा खान भी शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात पर इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब कर ली है और ये भी कहा है कि अगली समात यानी 16 सितंबर तक
इमरान खान हॉस्पिटल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सेहत के बारे में मेडिकल रिपोर्ट की समरी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि इमरान खान का एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा है। ये रिपोर्ट अडयाला जेल के हुकाम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इमरान खान ने बोझलपन और दिल की धड़कन तेज होने की शिकायत की है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की उम्र तकरीबन 73 साल है और तिब्बी मुआयने के दौरान उनका ब्लड प्रेशर 140/80 जबकि नब्ज 54 फी मिनट रिकॉर्ड हुई। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का आखिरी तिब्बी मुआयना 10 अगस्त 2026 को मेडिकल बोर्ड ने किया था और इस मेडिकल बोर्ड में आंखों, हार्ट स्पेशलिस्ट और मेडिसिन के माहिरीन डॉक्टर शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने ब्लड प्रेशर और एंग्जाइटी पर काबू पाने के लिए अद्वियात तजवीज़ की हैं और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए रोज़ाना 1 घंटा चहलकदमी और ज़हनी सुकून की सरगर्मियाँ तजवीज़ की हैं। इस रिपोर्ट में इमरान खान को मैगज़ीन, अखबारात, टीवी और मुताले के लिए किताबें फराहम करने के अलावा इमरान खान की अहल खाना और उनकी वाइफ से मुलाकातों का दौरानिया बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ख़ानदानी मेल जोल बढ़ाने से इमरान खान की बेचैनी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। भारत में काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट के लिए स्कूल ठीक करो के नाम से मुहिम शुरू कर रखी है। इसी मुहिम के दौरान मगरबी बंगाल में सीजेपी के एक रजाकार अब्दुल हफीज़ के वालिद पर हमला किया गया, जिसमें वो हलाक हो गए। वाक़े के बाद सीजेपी की आदत ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा है कि हमले के बावजूद स्कूल ठीक करो मुहिम जारी रखी जाएगी। मज़ीद तफसील नाइला ख्वाजा से। इंडिया के यौम आज़ादी के मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने जब अपने गांव के सरकारी स्कूल का दौरा किया तो जश्न के इस माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ एक तस्वीर सामने आई। इंडिया की मगरबी रियासत महाराष्ट्र के सानुक पिंपड़ी गांव के इस स्कूल में टूटी फूटी सहूलियात, नजरअंदाज होता इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों की तालीम से जुड़े वो मसाइल नजर आए जो आज़ादी के 80 साल बाद भी हल तलब हैं। इसी सवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी की स्कूल ठीक करो कैंपेन को जन्म दिया। जितने भी सरपंच ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि एक चांस है हम लोगों के पास अब कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का, तो क्यों ना हम जितने भी गांव में सरकारी स्कूल है उन स्कूलों को ठीक करें, उन स्कूलों को बेहतर बनाएं ताकि जो किसान और मजदूर के बच्चे गाँव के स्कूलों में पढ़ सकते हैं, उनको भी लगे कि वो भी इस देश का भविष्य है। दीपके कहते हैं ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि बेहतर और महफूज तालीम के लिए बुनियादी ज़रूरियात हैं। लेकिन ये सिर्फ इस गांव की ही कहानी नहीं। यूडाइस प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के आदादो शुमार के मुताबिक इंडिया के 14,67,000 स्कूल्स में 95% में बिजली की सहूलियात है, यानी तकरीबन 73,000 स्कूल में अब भी बिजली नहीं है। सिर्फ 69% स्कूल्स में टीचिंग के लिए फंक्शनल कंप्यूटर्स हैं, जबकि इंटरनेट की सहूलत सिर्फ 67% स्कूल में ही है और माजूर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 58% स्कूल्स में स्पेशल टॉयलेट्स की सहूलत है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के बावजूद बुनियादी सहूलियात का गैप अब भी काफ़ी बड़ा है। दीपके का कहना है कि हुकूमतें बदलती हैं, सियासी जमातें और उनके मंशूर बदलते हैं, लेकिन बहुत से सरकारी स्कूल्स के मसाइल वही के वही हैं। इसलिए इस कैंपेन का बुनियादी मकसद सीधा है। लोग सिर्फ वादों का इंतजार ना करें बल्कि स्कूल की सूरत हाल देखें, उसका रिकॉर्ड रखें और जवाबदेही का मुतालबा करें। इसी मुहिम से जुड़ी मगरबी बंगाल की एक और वाकया ने इस मसले की संजीदगी को बढ़ाया है। कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर अब्दुल ने जब उस सरकारी स्कूल का जायजा लिया जहां वो खुद पढ़ चुके थे, इसके बाद स्कूल की खराब सूरत हाल पर आवाज उठाने वाले उनके वालिद पर हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। तभी सीजेपी के अंडर जो स्कूल ठीक करो जो कैंपेन चालू हुआ था उसके रिगार्डिंग मैं अपने स्कूल में गया था सर से पूछने के लिए, सर सब कुछ फैसिलिटी ठीक है। 13 अगस्त सुबह 11 बजे गया था और रात को आपका 8 साढ़े 8 बजे वो लोग सारे आए, आके बहुत मारने के बाद सलिया लेके आया, बोला था मैंने यहाँ पे घुसाने की कोशिश किया और वो सीढ़ियों पे मेरा पापा को मतलब बहुत मारा। सीजेपी के बानी अभिजीत दीपके ने इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी से मंसूब अफराद पर इल्जाम लगाया है और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। सीजेपी का कहना है कि धमकियों के बावजूद वो सरकारी स्कूल की बेहतरी के लिए अपनी मुहिम जारी रखेंगे। हम वोट मांगने तो नहीं आए थे, अब्दुल वोट मांगने तो नहीं गया था, अब्दुल स्कूल ठीक कराने की बात करने गया था। ये इतने बेशरम लोग हैं
कि घटना के 2 दिन बाद जब उनको पता पड़ा कि हम लोग अब्दुल से मिलने आ रहे हैं तो इन्होंने उसी स्कूल को चमका दिया। क्या ये काम सरकार पहले नहीं कर सकती थी? क्या ये स्कूल पहले नहीं सुधारा जा सकता था? लेकिन स्कूल सुधारने की बजाय भाजपा ने गुंडे भेजना ज्यादा ठीक समझा। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है, ये हम बता दें। लेकिन मगरबी बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर इन दावों को मिसलीडिंग बताया है। इस सिलसिले में मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि इस वाक़े का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मामले में मुलविस किसी भी मुल्जिम को बख्शा नहीं जाएगा। FIR में नामजद 5 अफराद में से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस वाक़े में BJP का कोई दखल नहीं है। भारत ने पाकिस्तानी टिकटॉकर शहजाद भट्टी पर मुल्क में मुबैना दहशतगर्दी और शिद्दत पसंद कार्रवाइयों के लिए नेटवर्क चलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 रियासतों में कार्रवाई करते हुए शहजाद भट्टी नेटवर्क के 200 से ज़ायद मुबैना कारकुन गिरफ्तार किए हैं। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दावा है कि शहजाद भट्टी जालंधर में एक ग्रेनेड हमले समेत हरियाणा में पुलिस तनसीबात पर होने वाले बाज़ धमाकों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे और उन्होंने भारत में मुकामी अफराद के जरिए अपना नेटवर्क कायम किया हुआ है। शहजाद भट्टी ने भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। वो ISI से ताल्लुक़ की भी तरदीद करते हैं। इंडियन तहकीकाती इदारों की जानिब से उनके ISI से ताल्लुकात के इल्ज़ाम पर बात करते हुए उनका कहना था कि वो मेरा ताल्लुक ISI से जोड़ते हैं। अगर मैं ISI का बंदा होता तो मैं 6 साल से पाकिस्तान के बाहर ना रह रहा होता, पाकिस्तान वापस चला गया होता। मैं एजेंसी का बंदा नहीं, मेरे अपने मसले मसाइल हैं। आपके ही गैंगस्टरों से हमारी दुश्मनियां चल रही हैं। शहजाद भट्टी ने एक और वीडियो में दावा किया कि इंडियन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उनका ताल्लुक रहा है। उनका कहना था कि इंडियन गैंगस्टर बिश्नोई से ताल्लुक सिर्फ 2 वजह से ख़त्म किया है, एक सिद्धू मूसेवाला की वजह से, दूसरा ये कि वो अपने बंदों को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ देता है। मैंने कभी भी इंडिया में मेरे लिए काम करने वालों का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के एक DGP की जानिब से दिए जाने वाले इंतबाह का जिक्र करते हुए कहा कि वो सिर्फ पाकिस्तानी इदारों को जवाब दे हैं। जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तब मैं वहां जवाब दूंगा। मुझे तुम्हारे मुल्क आने या वहां नेटवर्क बनाने का कोई शौक नहीं। इंडिया के कई सोशल मीडिया सार्फिन और साफियों का दावा है कि शहजाद भट्टी मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम हैं। ताहम BBC इस दावे की तस्दीक करने से कासिर है। शहजाद के टिकटॉक अकाउंट, जिस पर उनके 3.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पर रवां बरस 4 जुलाई को पोस्ट करदा एक वीडियो में वो दुबई के एक रेस्टोरेंट में बैठे देखे जा सकते हैं। फेसबुक पर 31 जनवरी 2025 को पोस्ट करदा तस्वीर में शहजाद को दुबई माल में भी देखा जा सकता है। शहजाद की मुतअद्दिद वीडियोस और तस्वीर में वो जमीयत उलमाए इस्लाम फे के रहनुमा फर्रुख इम्तियाज़ खोखर के साथ भी नजर आते हैं, जिनमें 28 अगस्त 2025 की एक वीडियो भी शामिल है। याद रहे कि फर्रुख इम्तियाज़ खोखर का ताल्लुक रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाअसर समझे जाने वाले खोखर ख़ानदान से है। वो इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर के साहिबजादे, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हाजी नवाज खोखर के भतीजे और साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर के चचाजाद भाई हैं। वो कारोबारी, फलाही और सोशल मीडिया सरगर्मियों में भी फ़ाल रहे हैं। ताहम उनका नाम मुख्तलिफ मुकदमात में भी सामने आता रहा है, जिनमें कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतल्लिक केसेस भी शामिल हैं। 14 जुलाई 2026 को रावलपिंडी की अदालत ने माजिद सती कत्ल केस में उन्हें और दीगर मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करार दिया है। और अब दुनिया भर की दीगर खबरों पर एक नज़र डाल रहे हैं खालिद करामत। फिलिपाइन के शहर जम्बुआगा के एक हाई स्कूल में एक स्टूडेंट ने साथी स्टूडेंट को फायरिंग करके हलाक करने के बाद खुद को गोली मार ली है। पिछले 2 महीनों में ये ऐसा दूसरा वाक़या है। जून में 2 तलबा की फायरिंग से कम से कम 3 तलबा हलाक और तकरीबन 20 ज़ख्मी हुए थे। हुकाम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को असलहा कैसे मिला। फुटबॉल के आलमी इदारे फीफा ने अपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर केविन लमोर्ट को बरतरफ कर दिया है। उन्होंने फीफा के सदर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। ये तनकीद वर्ल्ड कप और दीगर टूर्नामेंट्स के हसस निजी सरमायाकारों को फ़रोख्त करने के मंसूबे के हवाले से की गई थी। ये मंसूबा बाद में तर्क कर दिया गया था।
سائنسدانوں کے مطابق بڑی عمر کے افراد کی صحت پر بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت کے اثرات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا گیا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ماضی کی بیشتر تحقیقات نوجوانوں پر مرکوز رہی ہیں جو گرمی کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں، جبکہ بوڑھوں میں گرمی کی وجہ سے اموات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ترقی پذیر ممالک میں صورتحال تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے بانی محمد علی جناح کا تعلق سندھ کے شہر کراچی سے ضرور جڑا ہے، لیکن ان کے خاندان کی جڑیں آج کے بھارت کی ریاست گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں پنیلی سے ملتی ہیں۔ اسی گاؤں میں جناح کے دادا پونجا بھائی کا آبائی گھر آج بھی موجود ہے۔ مقامی بچے تک اس گھر کا راستہ بتا دیتے ہیں، مگر اس مکان کے ساتھ جڑی تاریخ اب ایک نئے سوال سے دوچار ہے۔ موجودہ رہائشی اس گھر کو فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ محمد علی جناح کے والد اس گاؤں سے نکل کر کراچی کیسے پہنچے اور خاندان کی ہجرت کی کہانی کیا ہے، جانیے ثنا گلزار کی اس رپورٹ میں۔ انڈین ریاست گجرات کے پانیلی موٹی گاؤں کا یہ گھر بانی پاکستان محمد علی جناح کے دادا پونجا بھائی ٹھکر کا تھا۔ جناح کے والد جینا بھائی پونجا کی پیدائش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی۔ اس گاؤں کی آبادی تقریباً 13,000 ہے۔ یہاں کا بچہ بچہ محمد علی جناح سے جڑی اپنی پہچان کو بخوبی جانتا ہے۔ ان سے اگر پوچھیں کہ جناح کا گھر کہاں ہے تو وہ آپ کو ان کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ اس گھر میں اب پروین بھائی پوپٹ بھائی پوکیا رہتے ہیں۔ یہ گھر جناح کے دادا کا تھا اور اس پہچان کے ساتھ یہاں رہنا پروین بھائی کے لیے آسان نہیں ہے۔ گاؤں سے لے کر شہر تک ان کی پہچان یہی ہے کہ وہ جناح کے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ گھر میرے دادا نے خریدا تھا کئی سالوں پہلے، اور یہ محمد علی جناح کا مکان ہے، اور یہ گاؤں کے جو بزرگ ہیں وہ سب بولتے تھے کہ محمد علی جناح کے پریوار کے لوگ یہاں رہتے تھے، بعد میں وہ دور چلا گیا اپنا ویوسائے کرنے کے لیے، اور ہم جب چھوٹے تھے تب ہم کو معلوم ہوا کہ یہ مکان پاکستان کے بڑا جو آدمی تھا وہ محمد علی جناح اسی کا مکان ہے، اور ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ تو ہم کو لوگ پوچھتے تھے کہ وہ مکان کیا ہے، کیسا ہے، تو ہم کہتے تھے کہ جو ہم رہ رہے وہ مکان ہی محمد علی جناح کا ہے، اور ہمارے پوروجوں نے یہ خریدا تھا۔ پہلے وہ ٹھکر ناتی کے تھے اور دھرم پریورتن کر کے وہ مسلمان بن گئے، جو کھوجا آتا ہے وہی، اور یہ محمد جناح سے جناح ہو گیا ایسا بولتے ہیں۔ پہلا جناح بھائی تھا، بعد میں اس نے محمد علی جناح کر دیا۔ گاؤں والے بھی جناح سے جڑی یادوں کو کھل کر بیان کرتے ہیں۔ محمد علی کا برتھ نہیں ہے، اس کا دادا پردادا کا گاؤں یہی ہے، اور وہ لوہانا کا تھا، ٹھاکر جی کے سیوا تھی اس کے گھر میں، پہلے ہندو تھے، لوہرانا رگھوون سنگھ ناتی کے تھے، پھر بعد میں اس نے وہ سکی مچھلی کیا بولتے اس کو، جھینگا سونیا، اس کا بزنس شروع کیا ادھر، اور پھر ہمارے گناتی نے اس کو نعت باہر نکالا، گناتی سے باہر نکالا۔ 2005 میں بی جے پی کے اس وقت کے صدر لال کرشن اڈوانی پاکستان آئے تھے۔ وہ کراچی میں جناح کے مزار پر بھی گئے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ہندو مسلم ہم آہنگی کا پیامبر بتایا تھا۔ انہوں نے جناح کی تعریف میں وہاں رجسٹر میں لکھا تھا کہ ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں بڑی چھاپ چھوڑی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ بنائی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان کچھ لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اڈوانی کے اس بیان سے بی جے پی میں کافی بڑا تنازع پیدا ہو گیا اور پارٹی نے ان سے دوری اپنا لی تھی۔ یہ تنازع جناح کے گاؤں پانیلی موٹی تک پہنچ گیا اور ان کے آبائی گھر میں میڈیا کی موجودگی شروع ہو گئی۔ پروین بھائی پوکیا کا خاندان میڈیا سے پریشان ہو چکا ہے۔ اس گھر کو دیکھنے راجکوٹ ضلع کے سرکاری اہلکار بھی آتے رہتے ہیں۔ پروین بھائی پوکیا اب اس گھر کو فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ સસરાએ ખરીદી કરેલા છે, હું આવ્યા પહેલાંના। અત્યારે અમારે પૈસાની જરૂર હોય તો ખરીદી કરી નાખવાની। वो बाहर से कोई अपने मोटा मोटा साहिब હોય, બેંકના સાહેબ હોય, कोई कलेक्टर હોય, मामलतदार હોય, या से कोई दिल्ली से आया है यहाँ कोई, तो सभी पानेली में आते हैं कोई भी, तो वो देखने आता है कि वो पानेली आया है तो मकान तो देखना जाता है ना।
परेशान तो ये होता है कि वो टाइम को कोई नहीं है। अब दोपहर को सोता है तो आता है 2 बजे 3 बजे 4 बजे, उसका कोई टाइम टेबल तो नहीं है, आके खखड़ाते हैं, खोलिए। जिन्ना समेत जनूबी एशिया के अहम रहनुमाओं की तारीख लिखने वाले मशहूर मौर्रिख स्टैनली वॉलपर्ट ने अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि जिन्ना की पैदाइश शिया मुस्लिम खोजा ख़ानदान में हुई थी। खोजा कारोबारी बरादरी से होते हैं और कारोबार के सिलसिले में अक्सर सफ़र करते हैं। स्टैनली ने लिखा है कि खोजा दूसरी सकाफ़त, ज़ुबान और आबो हवा को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। पानेली मोटी गांव में अब भी खोजा बरादरी के 7 घर हैं। जिन्ना के दादा हिंदू थे और कारोबारी बरादरी लोहाना ठक्कर जात से थे, लेकिन उनके आबाओ अजदाद हिंदू से मुसलमान कैसे बने और ये ख़ानदान पानेली मोटी गांव से पाकिस्तान कैसे पहुंचा। पुंजा भाई मच्छी मारी का मतलब मच्छी का वो बिजनेस कर रहे थे, मच्छी बेचने का, और लोहाना कम्युनिटी में, क्योंकि वो हिंदू कम्युनिटी थी, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स उस मानों में थी, इसलिए वो ऐसे मच्छी का व्यवसाय नहीं करे, ऐसा एक विरोध उनकी कम्युनिटी में से उठा। चूंकि वो डिस्कार्डेड हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इंडिया के साबिक वजीर खारजा जसवंत सिंह ने अपनी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में लिखा है कि पूंजा भाई अपने 3 बेटों वलजी भाई, नत्थू भाई, जीना भाई और एक बेटी मान बाई के साथ हमेशा पानेली गांव में रहे। पूंजा भाई के सबसे छोटे बेटे जीना भाई ने गांव छोड़ने का फैसला किया और पास के इलाके गोंदाल चले गए। आखिरकार 1875 के आसपास जीना भाई अपनी अहलिया मिट्ठी बाई के साथ कराची चले गए। वहाँ उनका कारोबार खूब फला फूला और जिन्ना की पैदाइश भी यहीं हुई। जीना भाई पानेली मोटी गांव से दूर होना नहीं चाहते थे। स्टैनली वॉलपर्ट ने लिखा है कि 1893 में जिन्ना के लंदन जाने से पहले उनकी वालदा ने पानेली मोटी की ही एक लड़की एमी बाई से उनकी शादी करवा दी। लेकिन जिन्ना जब लंदन से लौटे तो ना उनकी वालदा जिंदा थीं और ना ही उनकी बीवी। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। जैसे जैसे मसनूई ज़हानत यानी AI हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, वैसे ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या AI पर ज़्यादा इन्हिसार वक्त के साथ हमारी तनकीदी सोच, याददाश्त, तख्लीक की सलाहियत और मसाइल हल करने की महारत को कमज़ोर कर सकता है। प्रकाश गंसवामी की रिपोर्ट, गजनफर हैदर की ज़बानी। मसनूई ज़हानत लिख सकती है, सवालों के जवाब दे सकती है और पेचीदा मसाइल हल कर सकती है। सवाल ये है कि क्या जब मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का काम कर रही हैं तो इंसान ये काम करना कम कर देंगे? AI या मसनूई ज़हानत साइंसी काम तेज़ी से कर रही है और वो मसाइल हल कर रही है जिनका हल निकालने में दहाइयाँ लग जाती थीं। हाल ही में साइंसदानों ने AI की मदद से कोरोना वायरसेस की वैक्सीन बनाई, वो काम जिसके बारे में उनका कहना है कि ये पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन बरतानिया के कदीम तरीन साइंसी इदारों में से एक में इसके बारे में तशवीश बढ़ रही है। आज हम AI को जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंस्टेंट फूड की तरह है। अगर हम अपनी भूख को एकदम से सिर्फ नमक और चीनी की खुराक से मुतमईन कर लें तो हम अपने दिमाग को नहीं आजमाएंगे। मेरे ख्याल में तजस्सुस इल्म की भूख के मुतरादिफ है। हम लोगों में इल्म की भूख पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग सवालात पूछें और उनका हल निकालें। इंसानी दरियाफ्त के पीछे तजस्सुस बुनियादी क़ुव्वत रहा है। इसका मतलब है कि बड़ी कामयाबियां आसान जवाबों से नहीं मिलती, बल्कि वो आइडियाज़ को आजमाने, गलतियां करने और इन्हें सीखने के अमल से जन्म लेती हैं। अगर किसी सवाल का एक सादा और सिंथेसाइज जवाब आपको AI प्लेटफॉर्म से मिल जाता है तो मुमकिन है कि आप इसके ज़राए नहीं देखेंगे, जवाब की क्वालिटी का जायज़ा नहीं लेंगे। हो सकता है आप जवाब से बिल्कुल खुश हो जाएं, लेकिन फिर पता चला कि जवाब झूठी मालूमात पर मबनी था। लेकिन असल तशवीश नई नस्ल और उन जहनों के बारे में है जो अभी नशोनुमा के मराहिल से गुजर रहे हैं। इस बारे में साइंसी तहकीक अभी इब्तदाई मरहले में है, लेकिन इसके बारे में जो सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि वो उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
मैं समझती हूँ कि बहुत कम उम्र के बच्चों के साथ किसी को भी AI टूल्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। याददाश्त से मुतालिक तहकीक में ये बात सामने आई है कि हम बच्चों की याददाश्त को गूगल इफेक्ट दे चुके हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। हमें मालूम है कि किसी भी सवाल का जवाब गूगल से कैसे निकालना है, हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है और इसने हमारी सोचने की क़ुव्वत को बदल दिया है। प्रोफेसर लकिन एआई के असरात के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हैं। उनके मुताबिक अगर इसे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही टेक्नोलॉजी इंसानी सोच को ज़्यादा मौसर भी बना सकती है। मुख्तलिफ रिसर्च से ये बात सामने आई है कि AI आपके जहन का बोझ थोड़ा कम कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम उससे आसान काम करवा सकते हैं, लेकिन आप इंसान हैं तो सोचने का काम आप कीजिए और जवाब तलाश करने का काम भी आप ही को करना है। आप AI से बुनियादी काम करवा सकते हैं, आप सोचने का काम कीजिए और अपनी सलाहियतों में इजाफे के बारे में सोचें, क्योंकि याद रहे कि आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिमाग का इस्तेमाल आप कीजिए। तो असल सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकती है, बल्कि ये कि क्या हम एआई का इस्तेमाल करते वक्त खुद सोचना तो नहीं छोड़ देते हैं। एआई को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बने हुए अभी चंद ही बरस हुए हैं, लेकिन इसके इंसानी दिमाग की सलाहियतों पर क्या असरात होंगे, इसके बारे में जवाब अभी सामने आना बाकी है। पाकिस्तान में आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने इस्लामाबाद में अपने मुकामी दफ्तर का संग बुनियाद रख दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से गूगल के 9 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की, जिसकी क़यादत गूगल के नायब सदर बराए हुकूमती उमूर और अवामी पॉलिसी विल्सन वाइट ने की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त हुकूमती निज़ाम और मईशत की वसी पैमाने पर डिजिटल तब्दीली के मरहले से गुजर रहा है और गूगल का मुकामी दफ्तर इस अमल में कंपनी के साथ शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करेगा। Name not only in Pakistan but around the globe, and there's a great scope to have a wonderful partnership with Google and enhance our relations in many ways. It's very interesting and sheer coincidence that you're here at a time when Pakistan is going through a major digital transformation. गूगल के मुताबिक मुकामी दफ्तर के जरिए पाकिस्तानी कारोबारों को आलमी मंडियों तक रसाई में मदद मिलेगी, जबकि नौजवानों के लिए IT, मसनूई ज़हानत और गेमिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में महारतों के फ़रोग के प्रोग्रामों को वसअत दी जाएगी। गूगल ने पाकिस्तानी तुलबा के लिए अपनी मसनूई ज़हानत की सर्विस जेमिनी की 1 साला मुफ्त सब्सक्रिप्शन देने का भी ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक इस इकदाम से तुलबा को जदीद AI टेक्नोलॉजी तक रसाई और सीखने के नए मौके मिलेंगे। Personally, it's a profound honor to meet with you. As you mentioned, this is my first trip to Pakistan, first 24 hours in Pakistan. But this is a big milestone for us, and we can't tell you how excited we are to mark this culmination of a very long time coming. Google has been investing in and committed to Pakistan for over a decade. And to be able to reach this milestone where we're opening a local office, I think is a very special moment. Thank you very much. We're very grateful. Yes. So first, later this week, we're going to announce that we will make Google Gemini subscriptions free for 1 year for all students. सामीन, उंगलियों के जोड़ चटखाने की आदत बहुत से लोगों में आम है। मुख्तलिफ मुतालात के मुताबिक तकरीबन 20 से 50% अफराद उंगलियों के जोड़ चटखाते हैं, लेकिन क्या जोड़ों से आने वाली टक टक, चटक या कड़क की आवाज़ किसी बीमारी या नुकसान की अलामत है? और क्या तवील अरसे तक जोड़ चटखाने से जोड़ों को नुकसान पहुंच सकता है? जानिए ज़ाहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। क्या आपने भी अपने बड़ों से सुना है कि उंगलियां चटकने से आर्थराइटिस हो सकता है? डॉक्टर डोनाल्ड अंगर ने भी बचपन में अपने बड़ों से कई बार ये सुना, तो इसे गलत साबित करने के लिए उन्होंने 50 साल तक रोजाना कम से कम 2 बार सिर्फ अपने बाएं हाथ के जोड़ चटकाए, यानी तकरीबन 36,500 मरतबा। 1998 में 72 बरस की उम्र में जब उन्होंने दोनों हाथों का एक्सरे करवाया तो मालूम हुआ कि बाएं हाथ में आर्थराइटिस की किसी भी किस्म की कोई अलामत मौजूद नहीं थी और ना ही दोनों हाथों
की साख्त में कोई नुमाया फर्क मौजूद था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की माहिर अमराज जोड़ किमी हायरिख के मुताबिक ये मामूल का एक फिजियोलॉजिकल अमल है। अक्सर लोगों को खदशा रहता है कि जोड़ चटखाने से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जो कार्टिलेज के घिसने से जुड़ी आर्थराइटिस की सबसे आम किस्म है, मगर हायरिख के मुताबिक जोड़ चटखाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुताद्दद तहकीकात इस तासर को कई बार रद्द कर चुकी हैं। 1975 में नर्सिंग होम के 28 रिहायशियों पर की गई एक तहकीक के मुताबिक आदतन जोड़ चटखाने वालों और ना चटखाने वालों में डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की शरह यकसां थी। जोड़ चटखाना बाज लोगों की लाशऊरी आदत होती है तो बाज लोगों को इससे मिलने वाला एहसास पसंद होता है। दो हड्डियां जिस मकाम पर मिलती हैं उसे जोड़ कहते हैं और वहाँ पर ही साइनोवियल फ्लूइड भी मौजूद होता है। जब आप अपने जोड़ को मोड़ते या खींचते हैं तो अंदरूनी जगह फैलती है और साइनोवियल फ्लूइड का दबाव कम होता है। दबाव कम होने से उसमें हल शुदा गैसें बुलबुले की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और उन्हीं बुलबुलों के बनने या फटने की वजह से चटकने की आवाज़ पैदा होती है। एक और गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि उंगलियां चटखाने से हाथों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन 2017 की एक तहकीक में ये बात साबित हुई है कि उंगलियां चटखाने का हाथों की गिरफ्त से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही किसी मुआयने में सूजन या खराबी की कोई अलामत सामने आई है। अमेरिकी न्यूरोसर्जन जे जगन नेथन के मुताबिक ये आदत अमूमन बेज़रर समझी जाती है और इसे छोड़ने की कोई तिबी ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि जिसमें लोगों ने हद से ज़्यादा कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए जोड़ चटकाए तो उनके जोड़ मुतासर हुए। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह अब तक की खास खबरें। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल हई ने खलीजी ममालिक को अमेरिका के साथ फौजी ताउन के हवाले से खबरदार करते हुए कहा कि इतनी बड़ी तादाद में फौजी तैयारों, खसूसन ईंधन भरने वाले तैयारों की मेज़बान ममालिक की मालूमात के बगैर इलाकाई अड्डों पर तैनाती का इम्कान कम है। उन्होंने कहा कि ईरान अमरीकी फ़ौज को दी जाने वाली किसी भी मदद या सहूलत को अपनी फ़ौजी कुव्वतों के खिलाफ शराकतदारी तस्वर करेगा। याद रहे कि इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के दौरान ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद उन अमरीकी अड्डों को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया था जहां अमरीकी फौज तैनात है। यूक्रेन के मकबूल साबिक वजीर दिफा मिखाइलो फेदरोफ ने जंग के दौरान इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है, जिसे रूस के हमले के 4.5 साल बाद सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सदारत को दरपेश सबसे बड़ा सियासी चैलेंज करार दिया जा रहा है। 35 साला फेदरोफ ने मंगल को यूट्यूब पर जारी एक वीडियो में कहा कि रूस जमहूरियत को यरगमाल नहीं बना सकता। उनका कहना था कि यूक्रेन इसीलिए लड़ रहा है कि वो एक आज़ाद यूरोपीय रियासत के तौर पर बरकरार रह सके। याद रहे कि 2022 में जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज है, जिसके बाइस इंतखाबात मुअत्तल हैं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को इलाज की गर्ज से इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर के तवस्सुत से दायर की गई इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने फैसला करते हुए मुल्क में कैदियों की अस्पताल मुंतकिली से मुतल्लिक जेल कवानीन में दर्ज तरीक़ाकार को मद्देनजर नहीं रखा, जिसके बाइस मुनसिफाना ट्रायल और मुकर्ररा कानूनी तरीक़ाकार के तकाजे पूरे नहीं हुए। वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के उस बयान के चंद घंटों बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत इमरान खान से मुतल्लिक अदालती हुक्म में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। श्रीलंका में डॉक्टरों ने एक शख्स के मसाने से 3.1 किलोग्राम यानी 6.8 पाउंड वजनी पत्थरी निकाल ली है, जिसके बारे में उनका ख्याल है कि ये अपने नौयत की अब तक रिकॉर्ड पर मौजूद सबसे बड़ी पत्थरी है। ये ऑपरेशन गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क के मशरक में वाक़ शहर ट्रांकोमाली के एक हस्पताल में किया गया। 55 साला मरीज फालिज के बाद हस्पताल में दाखिल हुआ था। ताहम इलाज के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि उससे पेशाब करने में दुश्वारी हो रही है, जिसके बाद उन्हें इसके मसाने में पत्थरियों की मौजूदगी का पता चला। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने मसाने की पत्थरी निकाल दी है। इसका वजन हमल की मुकम्मल मुद्दत के बाद पैदा होने वाले बच्चे के बराबर था और इसका हुजम तकरीबन शुतर मुर्ग के अंडे जितना था।